Let us see chapter number 8, poem number 8. Title is Abhar. Abhar means thank you. એનો સાહિત્ય પ્રકાર છે સોનેટ કાવ્ય. And speciality of this type of poem, sonnet poem, there are total 14 lines are there in sonnet poem. There are total 14 lines are there in sonnet poem. And another speciality of sonnet poem, there is no any particular tune for that kind of poem. Sonnet poem, it means no any perfect tune for sonnet poem. એના પોએટનું નામ છે, કવિનું નામ છે ઉસ્નસ. તેમનો જન્મ 28 સપ્ટેમ્બર 1920 થયો હતો. 28મી સપ્ટેમ્બર 1920 તેમનો જન્મ થયો હતો અને અવસાન એટલે કે મૃત્યુ 6 નવેમ્બર 2011, 6 નવેમ્બર 2011 તેમનું મૃત્યુ અવસાન થયું હતું. લેટ અસ સી નાઉ ઇન્ટ્રોડક્શન. ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ. नटवरलाल कुबेरदास पंड्या, उनका फुल नेम है नटवरलाल कुबेरदास पंड्या और उनका उपनाम था उस्नस. लोगों ने जो शॉर्ट नेम उनको दिया था दैट इज उस्नस. तो ઉસ્નસનો જન્મ વડોદરા જિલ્લાના સાવલી ગામે થયો હતો. તેમણે અધ્યાપક અને આચાર્ય તરીકે કામગીરી કરી હતી. નેપથ્યે આર્દ્રા, મનોમુદ્રા, તૃણનો ગ્રહ, સ્પંદ અને છંદ, કિમકેણી, ભારત દર્શન, અસ્વસ્થ, રૂપના લય, વ્યાકુલ, વૈષ્ણવ, પૃથ્વીને પશ્ચિમ ચહેરે અને શિશુલોક તેમના કાવ્ય સંગ્રહો છે. તેમની સમગ્ર કવિતા સમસ્ત કવિતા નામે પ્રગટ થઈ છે. સદમાતાનો ખાંચો એ તેમની સ્મરણ કથા છે. લેટ અસ સી નાઉ ઇન્ટ્રોડક્શન. સેકન્ડ પેરેગ્રાફ ઓફ ધીસ પોએમ. તેમને રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક, ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી અને સાહિત્ય અકાદમી દિલ્હીના એવોર્ડ પુરસ્કારો એનાયત થયા હતા. ઇટ મીન્સ પ્રાપ્ત થયા હતા. સોનેટ કાવ્ય સ્વરૂપમાં કવિ પોતાની અનુભૂતિ 14 પંક્તિની મર્યાદામાં, ઇટ મીન્સ 14 લાઇન્સ ટોટલ, there are total 14 lines are there. તો 14 પંક્તિની મર્યાદામાં વ્યક્ત કરતો હોય છે અને અંતિમ 2 પંક્તિઓમાં સમગ્ર કાવ્ય ભાવ વ્યક્ત કરતી અસરકારક ચોટ સિદ્ધ કરતો હોય છે. આ સોનેટમાં કવિએ આધુનિક યંત્રયુગને ચિત્રાત્મક રીતે મૂક્યો છે. માનવ જાતે કુદરતથી મોહ ફેરવી લીધું છે, પણ કુદરતે તેનો આદિમ મહિમા ગુમાવ્યો નથી. કવિ પ્રકૃતિ તરફ આભારની લાગણી વ્યક્ત કરે છે. ટાઇટલ એ આભાર મીન્સ થેન્ક યુ. તો પોએટ ઉસ્નસ એટલે કે નટવરલાલ કુબેરદાસ પંડ્યા એ પ્રકૃતિ તરફ આભારની લાગણી વ્યક્ત કરે છે આ પોએમ દ્વારા. કાવ્યની પ્રથમ પંક્તિમાં જ કવિ લખે છે, અમે તો આકાશો ભણી પીઠ કરી હતી, ઇટ મીન્સ પીઠ કરી હતી,
અને ભીત ચણી હતી, છતાં અમારા ઘરની છેક ભીતર હજુ પણ કબૂતરો, હોલા અને ચકલીઓ આવે છે. રસોડામાં તેમના દ્વારા પડતા તણખલા, તેમની ચીંચી આવાજ, ટહુકા અને ખરેલા પીછાઓથી કવિને ખૂબ સારું લાગે છે. હજુ સારું છે કે ભીતની તરડમાં પૂછ્યા વગર જ ग्रास वो उगी निकले हैं. फॉर एग्जाम्पल कि कहीं पर भी जो वॉल में दरार आती है या कोई पुराना जो घर कहीं पर होता है उसमें जो दरारें आ जाती है वॉल में, तो उसमें से अपने आप ही ग्रास वो निकल आता है. तो हजी पण भीतनी तरड़मां पूछ्या वगर ज घास उगे छे. आम माणसे ઊભી करेली कृतक એટલે કે કઠોર ભીતોને તોડીને પણ પ્રકૃતિ તેની પાસે દોડી આવે છે. ऐसी हार्ड वॉल है, वो वॉल में भी उसकी दरार में से भी अपने आप ग्रास तृण उगी निकले हैं. કઠોર ભીતોને તોડીને પણ પ્રકૃતિ તેની પાસે દોડી આવે છે. અંતિમ બે પંક્તિઓમાં એટલે કે લાસ્ટ 2 લાઇન્સ, એમાં આખા કાવ્યની ચોટ ધારદાર રીતે વ્યક્ત કરતા કવિ લખે છે કે માટીએ તેનામાં હજી પેલા આદિમ મૂળો સાચવી રાખ્યા છે. માટીએ તેનામાં હજી પેલા આદિમ મૂળો, ઇટ મીન્સ એન્શિયન્ટ રૂટ્સ, હજી પણ એ માટીએ જાળવી રાખ્યા છે, જેથી વાડ છોડે પ્લાસ્ટિકના फूलों खिलता नहीं. या ये पोएम के जरिए पोएट हमें समझाना चाहते लास्ट 2 लाइन में, लास्ट 2 लाइन्स ऑफ दिस पोएम कि मिट्टी ने हजी भी लोग बदल गए. नाउअडेज लोगों का नेचर और सोच बदल गई. अर्लियर जो ह्यूमन बीइंग थे उनकी सोच में और अभी के लोगों की सोच में बहुत ही अंतर है, फ़र्क होगा. लेकिन जो मिट्टी है वो तो बरसों पहले जैसी थी आज भी उसकी क्वालिटी वैसी ही है. उसने अपनी क्वालिटी चेंज की नहीं. अदरवाइज जैसे मनुष्य बदल गए, उनकी सोच बदल गई. फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल दीपावली फेस्टिवल को में अपने घर को सजाने के लिए नाउअडेज लोग रियल प्लांट के बदले डुप्लीकेट प्लास्टिक के प्लांट्स लाके सजाते अपने घर को. सो उनकी सोच बदल गई. उनको ओरिजिनल चीज़ पसंद नहीं आती. ओरिजिनल चीज़ वो रखते नहीं, बल्कि उसके बदले वो आर्टिफिशियल प्लास्टिक के फ्लावर्स, प्लांट्स अपने घर में को सजाने के लिए वो रखने लगे. तो मनुष्यों की सोच बदल गई. एटमॉस्फेयर प्रकृति को लेके उनको वो ओरिजिनल चीज़, ओरिजिनल थिंग वो पसंद नहीं है, बट डुप्लीकेट थिंग उनको पसंद आने लगे. ऐसा ही मिट्टी सोचने लगे तो, लेकिन मिट्टी ऐसा सोचती नहीं. उसने अपनी क्वालिटी वैसे ही रखी है अभी तक, बरसों पहले जैसी थी वैसे ही. वो भी सोचे कि चलो मनुष्यों को डुप्लीकेट फ्लावर्स ही पसंद है, प्लांट्स ही पसंद है, तो मैं क्यों उनको ओरिजिनल प्लांट ही दूँ, ओरिजिनल फ्लावर दूँ. वो खुद ही डुप्लीकेट प्लास्टिक के फ्लावर्स वो उगा सकती थी. अंडरस्टूड नाउ, क्योंकि मनुष्यों को तो वही पसंद है नाउअडेज. लेकिन मिट्टी ने अपनी क्वालिटी आज भी बरकरार रखी है. जो बरसों पहले थे वो आज भी सेम वैसे ही, वो बदली नहीं. तो हजी माटीए तेना आदिम मूळो साचवी राख्या छे, जेथी वाड छोड़े प्लास्टिकना फ्लावर्स खिलता नथी. माणस भले बदलायो
પણ પ્રકૃતિએ તેના ગુણધર્મો જાળવી રાખ્યા છે, એટલે કે સાચવી રાખ્યા છે. એ બદલ કવિ અહીં આભારની લાગણી વ્યક્ત કરે છે. લેટ અસ સી નાઉ પોએમ. અમે તો આકાશો ભણી પીઠ કરી હતી, ભીત ચડી હતી. પોએટ ઉષ્ણસ અહીં કહે છે કે અમે એટલે કે વી ઓલ હ્યુમન બિંગ, મનુષ્યો, અમે તો આકાશો ભણી પીઠ કરી હતી, અને ભીત मीन्स वॉल, पीठ करी इट मीन्स कि ये जो नाउअडेज हम जो घर बनाते अपना वो ऐसा छत भी पक्की होती है और वॉल भी ऐसी पक्की बनाते हैं, तो इससे जो स्काई आकाश दर्शन वो हो सकता नहीं. इट मीन्स वो एक कहना चाहते कि हमने तो आकाश तरफ पीठ चढ़ी दी थी. अर्लियर लोग अपने घर से, इवन नाउअडेज ऑल्सो सम विलेजर जिनका घर ऐसा पक्का नहीं और वो घर से बाहर चारपाई बिछा के वहाँ पर सोते हैं, और वो यूँ सोते हैं तो सीधा उनकी नज़र जाती है आकाश में, तो आकाश उनको दिखता है पूरा. वो भी एक એ પણ એક લાહો છે આકાશને માણવું. અંડરસ્ટુડ ના? आकाश જોવાનો પણ એક લાવો છે जो आज हम सबको वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने ऐसे पक्की छत बना दी. अंडरस्टूड ना? यानी कवि कहे છે કે અમે તો પીઠ ચણી છે આકાશ તરફ, અને ભીત ચણી છે, વોલ પણ ચણી દીધી. એટલે कि इट मीन्स कि हमने पक्के मकान बनाना शुरू कर दिया और उसमें हम रहते हैं जस्ट लाइक प्रिजनर, कैदी बन के. अरे सारू है कि हजी पण अमारा घर में ही घणे ऊंडे ऊंडे उड़ती उड़ती आवी भीतरे गूंथे छे माळाओ, कबूतर, कपोतो अने चकलियों. कवि उष्णस आगे हमें समझाना चाहते हैं कि अरे सारू है कि हजी पण अपना घरों में, अमारा घरों में, मही मीन्स अंदर, इनसाइड, तो अपना घर में ही मही એટલે કે આપણા ઘરોમાં ઘણે ઊંડે ઊંડે ઉડતી ઉડતી આવી ભીતરે. ભીતર મીન્સ ઘરની અંદર. ઘણે ઊંડે ઊંડે મીન્સ દૂર દૂર સુધી આકાશમાં ઉડીને હજી પણ કેવા કેવા બર્ડ્સ આપણા ઘરમાં આવીને નેસ્ટ, માળાઓ બનાવે, ગૂંથે છે મીન્સ માળાઓ, એમના નેસ્ટ બનાવે છે. તો કેવા કેવા એ બર્ડ્સ? तो कबूतर, दव, कपोतो એટલે કે હોલંગ, जो लाइट ब्राउन कलर के होते हैं जस्ट लाइक डव बर्ड, कबूतर जैसे ही होते हैं, दैट इज कॉल्ड कपोतो, होलंग. तो कबूतर, कपोतो અને ચકલીઓ, ચકલીઓ मीन्स स्पैरो बर्ड. तो ये हजी पण सारू है, संपूर्ण रूप से बर्ड्स डिस्ट्रॉय हुए नहीं, अभी भी वो बचे और अभी भी वो हमारे घर में आके रहते, बसते, नेस्ट बना के वहाँ पर रहते. लई आवे थोड़ू गगन घर में ए मिस वड़ी. मिस इट मीन्स ए बहाने, बहानु. अने लई आवे थोड़ू गगन, ऐसा कवि यहाँ पर हमें समझाना चाहते हैं कि वो आकाश में, खुले आसमान में दूर दूर तक जाके आते, उड़ के आते ऐसे बर्ड्स, वो अपने साथ मानो कि थोड़ा सा स्काई, आकाश, गगन, वो भी हमारे घर में उसी बहाने लेके आते हैं. लई आवे थोड़ू गगन घर में ए मिस वड़ी, अमो सौना ऋणी, नबती घरमा जेथी नबता. એટલે કવિ અહીંયા સમજાવે છે આ પંક્તિ દ્વારા કે અમો સૌના ઋણી, આપણે એ બધા બર્ડ્સ, એ પંખીઓના, એ પક્ષીઓના આપણે ઋણી છીએ. એટલે કે
એમનું આપણા પર કર્જ ગણાશે. અંડરસ્ટુડ નાઉ? તો અમો સૌના ઋણી, આપણે બધા એ લોકોના કરજદાર કહેવાય, ઋણી કહેવાય. આપણે એ લોકોનું આભાર વ્યક્ત કરવો જોઈએ દિલથી कि ये बर्ड्स ना, उनके बदौलत बर्ड्स जो आते हैं हमारे घर में नेस्ट बना के रहते हैं, तो उनके बदौलत जैसे कि नभती घर में जेथी नभदा, ये अपना घर में ये नभती, इट मीन्स वो पलते हैं. बर्ड्स वो हमारे घर में आके बसते पलते हैं, नेस्ट बना के रहते हैं, जेथी नभता. और मानो कि इसीलिए हम भी जैसे कि આપણે પણ નભી રહ્યા છીએ, પલી રહ્યા છીએ, આપણે પણ સાથે સાથે આપણું પણ પાલન પોષણ થઈ રહ્યું છે. એમ કવિ કહે છે कि वो हमारे घर में आके बसता है, नेस्ट बना के रहता है, दूर दूर गगन में आकाश में उड़ीने, मानो कि वो थोड़ा बहुत गगन स्काई आकाश वो हमारे घर में भी उसी बहाने लेके आता है. और वो हमारे घर में नेस्ट बना के रहते, बर्ड्स पलते नभती जेथी घर में जेथी नभता. इसीलिए मानो कि हम भी वैसे ही पल रहे हैं अपने घर में. अंडरस्टूड नाउ? हम भी उसी बहाने थोड़ा बहुत वो स्काई आकाश उसे हम भी उसी बहाने एंजॉय कर पाते हैं. हजू सारू है कि सिर पर रसोड़े तणखला. हजू सारू है, कवि आगर समझाए हैं कि सिर पर, सिर मीन्स हेड, मस्तक, सिर पर रसोड़े तणखला. रसोड़ा किचन में जनरली जो लाइट होती है या वहाँ कोई फोटो हम लगा दे कोई भी घर में, तो ऐसे फोटो के पीछे या लाइट के पीछे जरा से भी थोड़ी सी जगह मिलती है, वहाँ आके वो अपना नेस्ट बनाता है. वो ग्रास लेके आते हैं बाहर से और वहाँ पर अपना नेस्ट बनाते हैं. तो हजी सारू है कि सिर पर रसोड़े तणखला. तणखला मीन्स ग्रास. तणखला लईने आवे छे अने नेस्ट बनावे छे, एनो माळो बनावे छे. झीणी झीणी चीची टहुका मलमली पीछाओ खरी रहे. हजी पण सारू छे कि झीणी झीणी चीची आवाज़, स्पैरो बर्ड की आवाज़ यहाँ पर डिस्क्राइब की पोएट ने कि चीची आवाज़ करे छे अपना घर में आवीने. ए हजी पण चकलियो स्पैरो बर्ड. टहुका मीन्स ए बर्ड्सनो अवाज हजी पण अपना कान में अपना घरों में ए संभळाया करे छे. मलमली पीछाओ खरी रहे थे. और जब वो उड़ के आते हैं तो कभी कभी वो उनके फेदर्स पीछा ए पण खरी पड़े हैं. अंडरस्टूड नाउ? तो ये बात समझावे है कि हजी पण एमनी झीणी झीणी चीजी अवाज, एमना टहुका एटले के बर्ड्सनो अवाज काने संभळाय छे, आपણા ઘરોમાં સંભળાય છે. અને મલમલી પીછાઓ ખરી રહે છે અને ઉડીને આવે ત્યારે ક્યારેક એના પીછા પણ ખરી જતા હોય આપણા ઘરમાં, એ પણ દેખાઈ આવે છે, મળી રહે છે. એટલે કે કવિ સમજાવવા માગે છે કે હજી સંપૂર્ણ રૂપથી બર્ડ્સ ડિસ્ટ્રોય થયા નથી, હજી પણ એ થોડા ઘણા બચ્યા છે, રહ્યા છે. सो मैनी रीजन्स बिहाइंड दैट कि बर्ड्स की तादाद दिन ब दिन क्यों कम होती जाती है. और इसमें सबसे बड़ा जो रीज़न अभी हम माने तो रेडिएशन ऑफ दैट मोबाइल टावर्स, तो उसके इफेक्ट से भी बर्ड्स उनकी तादाद नाउअडेज धीरे धीरे कैसे होती गई, कम होती जाती हैं. बहुत सो मैनी रीजन्स आर देयर. इवन जो हंटर बर्ड्स होते हैं वो भी अपने से छोटे बर्ड्स को मारते हैं. इवन सम हंटर्स ऑल्सो देयर नाउअडेज शिकारी. ऐसे लोग भी बर्ड्स को मारते रहते हैं अपने स्वार्थ के लिए.
understood now. So many reasons behind them. और ह्यूमन बीइंग nowadays ये अपने घर को फर्नीचर बनाने के लिए, सजाने के लिए ये वृक्ष का निकंदन करते जाते हैं, यानी फॉरेस्ट एरिया कम होते गए और उस पर बहुत सारे बर्ड्स पलते होते हैं। इसीलिए धीरे धीरे वो भी उनकी तादाद कम होती गई, क्योंकि वो वृक्ष ही काटते गए। लोग अपने घर में फर्नीचर बनाने के लिए, अपने घर को सजाने के लिए वृक्ष का निकंदन करते रहते आए दिन। फॉरेस्ट एरिया कम होता जाता है धीरे धीरे, और वो भी रीज़न, तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं कि क्यों बर्ड्स की तादाद कम होती जाती है नाउडेज। हजी आवे छे वननी लीली कहवा परी कथा। हजी पण मानो कि आवे छे जाने के वननी लीली कहवा परी कथा। वननी वनराय जाने के आजे पण हमें ऐसा माना गया कि बचपन से हमें जो परी कथा, स्टोरी ऑफ फेरी, परियों कथा, वो सुनना सबको अच्छा लगता है। तो आज भी मानो कि वो फॉरेस्ट एरिया में से ये लिली वनराय, वो बर्ड्स के जरिए, बर्ड्स वहाँ पर घूम के आते हैं, हमारे घर में नेस्ट बना के रहते हैं। तो मानो कि वो वननी लिली वनरायनी परी कथा, स्टोरी ऑफ दैट फेरी ऑफ दैट फॉरेस्ट एरिया, ऐसी ग्रीनरी में रहने वाली जो परी फेरी, उसकी स्टोरी मानो कि वो कहने आते हैं बर्ड्स। और ची ची उनकी आवाज़, उनके टहुका, एना मीन्स बर्ड्स की आवाज़, तो उनके जरिए जैसे कि मानो अपने घर में आके वो बोलते हैं, तो हमें वो स्टोरी सुनाने आते हैं। वननी લીલી પરી કથા, વનરાય વનની જે ગ્રીનરી છે એની ફેરી, સ્ટોરી ઓફ ફેરી એની પરી કથા જાણે કે આપણને સંભળાવવા આપણા ઘરમાં આવીને નેસ્ટ બનાવીને રહે છે અને ત્યાં એ આવાજ કરે છે, ટહુકા કરે છે, બોલે છે। હવામાં આગેનું પરણ મનમાં છેક ખરતું। પરણ ઇટ મીન્સ લીવ, પાંદડું। હવામાં જાણે કે આગેનું પરણ મનમાં છેક ખરતું। હવાથી જાણે કે દૂર રહેલા વૃક્ષ પરથી એ પર્ણ, પત્તું, પાંદડું એ ખરી પડે છે ડાળી પરથી, એના વૃક્ષ પરથી। ત્યારે હવામાં આગેનું પરણ મનમાં છેક ખરતું, તો હવામાં જાણે કે એ વૃક્ષ પરથી એની બ્રાન્ચ, એની ડાળી પરથી જાણે હવાને કારણે એ લીપ, પાંદડું, પત્તું, એ પરણ મીન્સ પાંદડું એ ખરે છે। તો એવું લાગે છે કે જાણે એ છેક મનમાં ખરી રહ્યું છે। વહાં પર દૂર, આગે મીન્સ દૂર, છતાં પણ એવું લાગે કે જાણે મનમાં ખરી રહ્યું છે, એવો અનુભવ થાય છે, એવો અહેસાસ થાય છે। એ બર્ડ્સના જરીએ જે ત્યાં આપણા ઘરમાં આવીને નેસ્ટ બનાવીને રહે છે, તો એવો અહેસાસ થાય છે કે જાણે એ પર્ણ, પાંદડું મનમાં ખરી રહ્યું છે। હજી તો સારું છે કે ભીત તરડમાં માથું ઉચકીને, વિના પૂછ્યા ગાછા તૃણ નીકળતું ફૂંક કરીને। હજી તો સારું છે કે આ ભીત તરડમાં જે पुराना जो हाउस घर होता है उसकी वॉल में दरारें आ जाती हैं, तो वो दरारें, या तो नया घर होता है पक्का तो भी कभी उसमें भी दरारें आ जाती है, तो उसमें से भी ग्रास बिना पूछे अपने आप ही उग के निकल आता है, बाहर निकल आता है अपने आप ही। तो हजी तो सारू है कि भीत अने एनी तरड़मा मीन्स तिराड़ोमांथी दरारों में से माथुं उचकीने बिना पूछा गुछा गाछा तृण निकलतुं फूंक करीने, बिना परमिशन लिए अपने आप ही वो उग के निकल आता है बाहर। वो वॉल की दरारों में से अपने आप ग्रास उग के बाहर निकल आता है फूंक करीने। तो उसकी आवाज़ भी डिस्क्राइब किया कि फूंक करीने, इट मीन्स अपने आप वो
उग के बाहर निकल आता है। लास्ट लाइन, भलू के मिट्टी में हजी वंतना आदि मूड़ो, हजू पण सारू है कि मिट्टीए पोताना आदि मूड़ो एने साचवी राख्या है, जाळवी राख्या है। हजी वाड़ा छोड़े नथी उगड़ता प्लास्टिकना फूलो, एटले हजी पण माटीए पोताना आदि मूड़ो एशियन रूट्स एने साचवी राख्या है। एटले आजे ए माटीमां आजे पण ओरिजिनल फ्लावर्स ज उगी निकळे छे। आजे पण माटीमां जे प्लांट्स उगे छे एमां जे फ्लावर्स आवे छे ए पण ओरिजिनल होय छे। एमां माटीमां आजे प्लास्टिकना फ्लावर्स फूलो उगता नहीं, क्योंकि मिट्टी ने आज भी अपनी क्वालिटी वर्षों पहले थी वैसी आज भी बरकरार रखी है। हजी वाड़ा छोड़े नहीं उगड़ता प्लास्टिकना फूलो, एटले कवि कहे छे हजी पण आपणा वाड़ा छोड़े एटले के प्लांट्स पर जे फ्लावर्स उगी निकळे छे ए पण ओरिजिनल होय छे। ए प्लास्टिकना फ्लावर्स उगता नहीं। तो शेमाथी आ पोएम लेवायेलू छे? तो लास्ट में ब्रेकेट में लख्यू है कि अस्वस्थ माथी आ पोएम अहीं लेवायेली है। अस्वस्थ नामनु जे पोएम जे बुक नी रचना करी उष्णस कविए एमांथी आ वन सिलेक्टेड दिस पोएम नंबर 8। आभार। ऐसी बहुत सारी पोएम वो अस्वस्थ जो बुक उन्होंने लिखी उसमें बहुत सारी पोएम वहाँ पर हैं, जिसमें से एक सिलेक्टेड आभार पोएम यहाँ पर ली गई।